भारत की बात करते हैं, there is a लक्ष्य of 5 trillion economy, and only if Maharashtra touches 1 trillion, and then some other states who have set that goal touch it, that we can achieve that 5 trillion. When is Maharashtra going to get there? And how is it going to get there? How can this group here, how can they help I you? think right now Maharashtra is closest to 5 trillion economy because I think last year we have surpassed the mark of half trillion. And if you look at other states, I think they are at 200 billion, 300 billion. So we are actually very Closest to near. 1 trillion. We are closest. And if you look at our growth rate, barring the COVID years, our CAGR has been 10%. And this year also we have grown with around 7.6%. So by business usual, if we don't change even our business, we will be 1 trillion economy by 2030, 2031. But we have decided that we want to make Maharashtra a $1 trillion economy by 2029. And for that, we have created an economic advisory council. Mr. N. Chandrasekharan, who is chairman of Tata Sons, he was chairman of our council. And the council has given us a roadmap towards a $1 trillion economy. And we have already started working on that roadmap. So if you look at, our roadmap to $1 trillion economy, today, for progress, speed of data and speed of travel are two denominators which are very important. Speed of data is important because we are in the era of 5G, we are going towards 6G, and today data has surpassed in value terms the value of oil. So data is new oil, and that is why, and I must share, there is little digression, but I must share that Maharashtra is India's data center capital because India's 65% data center capacity is in the state of Maharashtra. Having said that, for speed of data, we have created seamless connectivities. We have reached every single village. Our fiber has reached every single village. So the speed of data will be immense, and by that we'll be able to make healthcare, education, and businesses reach to the rural population as well. And speed of travel is also very important because if you want to have a very vibrant economy and you want to become a member of global value chain, then I think the value of logistics and the time that the good travels should be shortened. And that is why, Samruddhi Highway or the Shaktipit Highway, which we are creating, many access control roads we are creating. We are creating a lot of infrastructure in and around, our business centers, so that enabling the economy to grow at the faster rate. So I think Maharashtra will be the first to become a $1 trillion economy, and hopefully by 2029 we will be the $1 trillion economy. 2029, and will be the first, especially when the competition is in the neighborhood and also somewhat a little distant neighborhood where Uttar Pradesh has set this goal, Gujarat has set this goal. What differentiates Maharashtra from these states? And आपको क्या लगता है कि कहां पर मुंबई कर हो, नासिक कर हो, नागपुर कर हो, कई महाराष्ट्र का कोई भी हो, इसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? कि पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने इस चीज पर संतोष व्यक्त करना चाहिए कि देयर इज अ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इन आवर कंट्री, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब केवल 3-4 राज्य ही कॉम्पीट करते थे, जिसमें महाराष्ट्र था, गुजरात था, कर्नाटक था, तमिलनाडु था, ये राज्य कॉम्पीट करते थे. आज देश में देयर आर अराउंड 10 to 12 स्टेट्स विच आर कॉम्पीटिंग. अभी भारत करीब मेरे हिसाब से 4.3 ट्रिलियन पर हम लोग हैं. 5 ट्रिलियन होंगे, 7 ट्रिलियन होंगे, 10 ट्रिलियन तक हम लोग जाएंगे. इसके लिए जरूरी है कि सारे राज्य ग्रो करें, सारे राज्य एक अपना इकोनॉमिक जो पाथ है उसको वो लोग चार्ट करें और उसके ऊपर वो चले. महाराष्ट्र का इसमें एक जो डिस्टिंक्ट रोल जो है वो इसलिए है कि महाराष्ट्र में एक वर्क कल्चर है. महाराष्ट्र हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रकार से बहुत आकर्षण का केंद्र रहा है. आप देखिए,
आज इतने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगर 2021 और 2022 छोड़ दे तो 2015 से लगातार हमने फर्स्ट नंबर रखा है, पहला नंबर रखा है। और देश में जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है उसका 35% इन्वेस्टमेंट ये महाराष्ट्र में आता है। आज हम देखें तो देश का 14% जीडीपी हम तैयार करते हैं, देश का 20% एक्सपोर्ट हम लोग तैयार करते हैं, देश का 21% मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ होता है। तो एक बहुत बड़ा कल्चर है। और अब व्हाट इज डिफरेंट, तो अब हम इसको अलग अलग जगह ले जा रहे हैं। नाउ नो मोर इज ओनली पुणे एंड एमएमआर रीजन अवर बिजनेस मैग्नेट। आज पुणे के साथ साथ संभाजीनगर में हम लोग देख सकते हैं कि जो हमने संभाजीनगर और जालना, ये जो डीएमआईसी का एक ऑरिक सिटी जो हमने तैयार की, वो हमारा नया बिजनेस मैग्नेट हुआ है। आज नागपुर एक बहुत बड़ा हमारा इंडस्ट्रियल हाउस तैयार हुआ है। गढ़चिरौली, ये अब देश की एक प्रकार से स्टील कैपिटल देश का ये गढ़चिरौली बन रहा है। देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट गढ़चिरौली में आ रहा है, चंद्रपुर में हो रहा है। इधर अगर हम लोग धुलिया चले जाए तो नरडाना की जो हमारी एमआईडीसी है वो अभी धीरे धीरे एक नया बिजनेस मैग्नेट के रूप में तैयार हो रही है। नंदुरबार में, नासिक में, जलगांव में धीरे धीरे बड़े पैमाने पर आज हमको इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई पड़ता है। सातारा एक हमारा नया बिजनेस मैग्नेट तैयार हो रहा है, क्योंकि जो मुंबई बेंगलोर हमारा एक हाईवे है, इसके ऊपर हम लोग एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत बड़े पैमाने पर ये सारा हो रहा है। और दूसरा, ये जो न्यू टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन है जिसमें जीसीसीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि जीसीसीज जो है वो टेक्नोलॉजी भी लाने वाले हैं और उसके साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का भी अवसर देने वाले हैं। अभी आप देखिए, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 2100 जीसीसीज विल लोकेट देमसेल्व्स इन इंडिया फ्रॉम अब्रॉड। अब हमारा प्रयास ये है कि इसको हम कैच करना चाहते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी होती है, अभी तक जो जीसीसीज हमारे यहाँ आए हैं उनमें 60% जीसीसीज ये महाराष्ट्र में आए हुए हैं, तो हम उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी जो महाराष्ट्र के लिए है और हम लोग उस पर बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। तो ये जरूर है कि कर्नाटक होगा, गुजरात होगा, ये सारे राज्य भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप इस साल का अभी 3 क्वार्टर का एफडीआई का रिजल्ट आया है, 4th क्वार्टर का आना है। 3 क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली, ये चारों का मिला के जितना इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा अकेले महाराष्ट्र